right? God is good all the time. and all the time. God is good. All right. Turn your Bible to Psalm 51. आप अपने बाइबल को खोले भजन संगीत 91 And we are going to look at for the first 10 verses and prepare our heart to receive God's word. और पहला 10 वचनों को हम देखेंगे और हम अपने को तैयार करेंगे प्रभु के वचन को स्वीकारने के लिए। Psalm 51 verse 1 through 10. भजन संगीत 51 वचन 1 से लेकर 10 तक। May I request you to stand for the reading of God's word to honor the word of God. मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप वचन पढ़ने के खातिर सब लोग खड़े हो जाइए। I will read verse 1, you read 2. I will read 3, you read 4, okay? Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Shall we pray? आइए हम इसमें प्रार्थना करें। Oh God, this morning we come humbly before you. Speak to us. We are hungry, we are thirsty, we are needy, we are weak. We are expecting you to move in our hearts today. Give us a receptive heart and an alert mind. Lord, give me the words of utterance. Fill me with your Holy Spirit. Give me the unctions, O God. I pray that you will cover me today behind thy garments so that only Jesus will be glorified. In Jesus' sweet name we pray. Amen. You may be seated. My heart's burden is great this morning before the Bible conference. बाइबल कॉन्फ्रेंस के सम्मुख मेरा जो हृदय का बोझ है बहुत ही बड़ा है। I want God, and I'm praying daily, that God would not allow us just to have another Bible conference the next week. मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ ताकि हम जैसे हमेशा की तरह कॉन्फ्रेंस वैसे ही ताकि हम आने वाले कॉन्फ्रेंस में ताकि हम ना बने। I want God to move among us in a mighty way like He does when we prepare to be under His word. जैसे हम उनकी वचनों के अधीन में होने के लिए जैसे हम हमेशा तैयार करते हैं, मैं चाहूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत तरीके से ताकि काम करें। Our hearts need to be prepared. हमारा हृदय उसको तैयार करने की ज़रूरत है। Our mind need to be prepared. हमारा मन उसको तैयार करने की ज़रूरत है। We need to have right spirit. हमें सही आत्मा होने की ज़रूरत है। I'm also praying a very, very tough prayer this week. मैं इस हफ्ते को बहुत ही कठिनदायक ऐसे प्रार्थना को कर रहा था That God would hinder people from coming, those whose heart and the spirit
is not right with God. जिनका आत्मा, जिनका मन प्रभु के साथ सही नहीं है, ताकि परमेश्वर उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में आने से रोके, मेरा ये प्रार्थना था। I'm not praying for people who are sinful. मैं उन लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहा हूँ जो पाप से भरा हुआ है। I'm praying for people who are sinful and need God's help. I'm praying that such people would come. लेकिन जो पाप से भरा हुआ है और जिनको प्रभु की जरूरत है, ताकि उस प्रकार के लोग कॉन्फ्रेंस के समय आ सके। I'm praying for people who realize that they need the help of God should come. मैं प्रार्थना कर रहा था कि उन लोग समझे कि उन लोगों को प्रभु की जरूरत है और उन लोग कॉन्फ्रेंस में आ सके। I'm praying for people who really is hungry and thirsty for God's word, that they would come. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो प्रभु के वचन के लिए प्यासा है, भूखा है, ताकि उन लोग आ सके। I'm praying for people who are struggling with sin and who wants God's mercy upon their life, that they would come. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो पाप से संघर्ष कर रहे हैं और उन लोगों को पाप से बाहर निकले, ताकि उन लोगों को प्रभु की ओर से मदद मिल सके। I'm praying for people who wants to have a right spirit and a clean heart, that people with such hunger and thirst would come. मैं प्रार्थना करता कि लोगों का मन ताकि शुद्ध हो सके, प्रभु के साथ सही हो सके, ताकि उन लोग प्रभु के वचनों को भूखा प्यासा होकर यहाँ पर आ सके। People who think that they are not wrong, I'm praying that they may not come. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, ताकि उन लोग नहीं आ सके। I'm praying for people who think that they don't need the help of God, that they should not come. जिनको लगता है कि मुझे प्रभु की कोई सहायता की जरूरत नहीं, ताकि उन लोग नहीं आए। I'm praying that people who realize that how much they need God every day, that they would come. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिनको ये लगता है कि मुझे कितना प्रभु की जरूरत है, ताकि उन लोग आ सके। David was a king. दाऊद एक राजा था, He was powerful. वो शक्तिशाली था, He was extremely powerful. वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। He had everything that he needed. उनके पास जो कुछ भी जरूरतमंद चीजें हैं, सब कुछ उनके He पास loved था। God passionately. उसने बहुत मन से प्रभु से प्रेम किया। He wanted to glorify God in everything. हर विषय में वो प्रभु को महिमा देना चाहता था, And he was on the top of everything as a king. और एक राजा होने के नाते वो सब विषय में सबसे ऊपर थे। But it is when you are in your highest point that the devil will come after you to get you. लेकिन जब आप ऊंचाइयों में रहते हैं, शैतान आपको निराश करने के लिए आपके सम्मुख आएंगे। I'm praying that God would do a new work in my heart. मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि परमेश्वर मेरे हृदय में नया काम करें। I'm praying that God would give me a new heart and a new spirit. मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे नए हृदय को, नए आत्मा को ताकि दे सके। Because I realize that I am needy and weak without God. क्योंकि मैंने समझा कि मैं बिना परमेश्वर के सहायता के मैं कुछ भी नहीं, और मुझे जरूरत है प्रभु की। So I need this Bible conference more than anybody in this world. तो किसी से भी ज्यादा मुझे ये बाइबल कॉन्फ्रेंस की बहुत ही आवश्यकता है। So I want to prepare my heart. तो मैं मेरा हृदय को तैयार करना चाहता हूँ। How is your heart today? आपका हृदय आज कैसा है? How is your spirit today? आपका आत्मा आज कैसा है? How is your heart towards God? आपका हृदय प्रभु के प्रति कैसा है? Towards the church? कलीसिया के प्रति, Towards your pastor? आपके पासवान के प्रति। What are you thinking behind your heart and mind? आपके मन, आपके हृदय में आप इस समय क्या सोच रहे हैं? Is your heart right with God? क्या आपका हृदय प्रभु के साथ सही है? Is your spirit is in good attitude with your pastor? क्या आपकी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा पासवान के साथ सही चरित्र में है? Is your heart and your spirit clean and having an excellent spirit with the church members? क्या आपका आत्मा और प्राण उत्तम आत्मा होते हुए कलीसिया के साथ सही है? When you go home, जब आप घर जाएंगे, what do you speak आप क्या बोलेंगे in regard to church, कलीसिया के बारे में in regard to Jesus Christ, और यीशु मसीह के बारे में,
in regard to the pastor. पास्टर को लेकर, Those three things will tell you how your heart is right now. वो 3 चीजें आपको बता देंगे कि आपका हृदय आज कैसा है। Now you can say, I love God. आप कैसे दें, हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। Anybody can say that. कोई भी ये कह सकता है आज। How is your heart towards the church? आपका हृदय कलीसिया के प्रति कैसा है? Allow me to go and dig your cavity in your heart today. आज आप मुझे अनुमति दें कि मैं गहराई में जाकर आपके सारे गंदगी को निकाल सकूं, Because that's when God will heal us. क्योंकि उसी वक्त परमेश्वर हमें चंगाई देगा And that's when God will move among us. और उसी वक्त परमेश्वर हमारे बीच काम करेगा। What do you do when you talk? What do you talk about in regard to the church members? कलीसिया के सदस्यों को लेकर आप क्या बात करते हैं? How is your attitude towards the church and the pastor? कलीसिया के प्रति, पासवान के प्रति आपका चरित्र कैसा है? Anybody can say anything about God. कोई भी प्रभु के बारे में कुछ भी कह सकता है। That's not the test. वो एक टेस्ट नहीं है। Everyone in this room will say, I love God. कोई भी यहाँ पर कह सकता है कि हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। How about your church members? लेकिन आपका कलीसिया का सदस्य के बारे में क्या? How about your relationship with your pastor? आपका रिश्ता पासवान के साथ कैसा? Do you think this need to be your prayer? क्या आपको लगता है कि ये आपकी प्रार्थना का विषय होना चाहिए Create in me a clean heart, O God. कि प्रभु मुझ में एक नई आत्मा को बना And renew a right spirit within me. और मुझ में नई आत्मा को उत्पन्न कर। Should this be your prayer today? क्या ये आज आपका प्रार्थना होना चाहिए? Should this be your prayer daily? क्या ये हर दिन का आपका प्रार्थना होना चाहिए? Or you don't need to pray that prayer? या फिर आप कुछ उस प्रकार का प्रार्थना करने की जरूरत Or नहीं, everything is okay with you? या फिर आपके जीवन में सब कुछ सही है? David thought he needed to pray that prayer. दाऊद ने सोचा कि मुझे ये प्रार्थना करना है। He was a king on the top most part of his life. और वो एक राजा था, उनके जीवन में ऊंचाइयों में था वो। He loved God passionately. वो पूरे हृदय से प्रभु से प्यार किया। He prepared to build the temple of God. प्रभु के लिए मंदिर बनाने के लिए उसने तैयारी की। God didn't allow him to build, but he prepared. God allowed him to prepare and store things to build. प्रभु ने उन्हें तैयार होने के लिए नहीं दिया, लेकिन बहुत सी चीजों को उसने तैयार भी की। His desire for God was passionate. उनका जो इच्छा प्रभु के लिए बहुत ही महान था। And in the midst of all this, when he failed to be careful, जब उसने सावधान होने के लिए उसने जब गिरा, just like you and me, जैसे हम गिरते हैं, David fell. तो दाऊद भी गिरा। David fell in sin, वो पाप में गिर गया, in the sin of adultery. व्यभिचार के पाप में गिरा। Is everybody okay here? क्या आज आप में से सब लोग सही हैं आज? Do we need God's healing? क्या हमें प्रभु की चंगाई की जरूरत है? Do we need to confess our sins today? क्या हमें आज पापों का प्रायश्चित करना है? Are we willing to acknowledge that we have sin that is hiding in our heart? क्या हम उसको समझना चाहेंगे कि हाँ मेरे हृदय में कुछ तो पाप है जो छिपा हुआ है? Are we willing to acknowledge that, yeah, I'm not that great that I think I am? क्या हम वो पहचानने के लिए आज तैयार हैं कि जितना मैं सोचता हूँ खुद के लिए कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ? Are we willing to acknowledge that we need God's forgiveness? क्या हम ये सोचने के लिए या फिर देखने के लिए तैयार है कि मुझे परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है? Are we willing to acknowledge that we need God to create a new heart within us? क्या हम ये देखने के लिए तैयार है कि हाँ मैं कह सकूँ कि प्रभु आज मुझ में एक नई आत्मा को उत्पन्न कर, And a right spirit. और सही आत्मा। When you shake hands with your brothers and sisters, जब अपने भाई और बहनों से जब आप हाथ मिलाते हैं, are you able to look into their eyes with joy? क्या पूरे आनंद के साथ उन लोगों की आंखों में आप देख सकते हैं? If you can see, अगर आप ऐसा देख सकते हैं that's a good thing.
तो वो सही अच्छा है। If we cannot see into the eyes अगर आप- properly, सही तरीके से उन लोगों की आंखों में नहीं देख सकते हैं we have issues in our heart. तो हमारे हृदय में कुछ तो गलत है। We can shake hands but not look into people's eyes. हम शायद हाथ मिला सकते हैं लोगों से, लेकिन आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। It means we need help from God. इसका मतलब हमें प्रभु की ओर से सहायता की जरूरत है। It means the spirit inside is affected. इसका मतलब जो आत्मा अंदर है उसको प्रभावित हुआ है। The heart is corrupted. हृदय जो है पूरा खराब है। We need help. हमें इस सहायता की जरूरत है। David, when the prophet Nathan came and confronted David, जब नेतन जो नबी है, जब दाऊद के पास आकर उसने बताई David fell in sin. कि दाऊद पाप में जब गिरा God spoke to Nathan the prophet. और परमेश्वर ने उस नबी से बात किया, नेतन से। You know, we don't like people preach about our sin as long as it is others okay. जब तलब बाकियों के बारे में है सही है, लेकिन जब हमारे बारे में प्रचार होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। God told Nathan, go and tell. प्रभु ने नेतन से कहा कि तुम जाकर उससे बताओ। Nathan knew David's heart. नेतन दाऊद के हृदय के बारे में जानता था। Nathan knew that David loved God. नेतन जानता था कि दाऊद प्रभु से कितना प्रेम करता है। Nathan knew that David is a man who is passionate about God. और नेतन जानता था कि दाऊद जो है प्रभु के बारे में कितना वो इच्छुक है, कितना प्रभु से प्रेम रखता है। And so when Nathan learned about David's sin from God, जब नेतन ने परमेश्वर की ओर से दाऊद के पाप के बारे में जाना, I can imagine Nathan going to that palace because God told him to go. और उस राजघराने में गया जहाँ पे परमेश्वर ने जाने के लिए कहा। And I can imagine Nathan with a heavy heart and fear in his heart going to David and saying, David, thou art the man. कि मैं समझ सकता हूँ कि जब उस नबी ने पूरे भारी हृदय को लेकर उनके राजघराने में गया कि वो तुम ही हो, Thou art the man. वो तुम ही हो। And David broke down. और दाऊद पूरा टूट गया। And this is the confession of David. और ये दाऊद का प्रार्थना एक है जो प्रायश्चित का प्रार्थना। We all may have different sins in us. शायद हम में बहुत अलग अलग पाप हैं। One of the common sin everybody, majority will have in the heart is what you see from your eyes. ज़्यादातर लोग जो है पाप आज करते हैं कि जो आप अपने नज़रों से देखते हैं। Each one will have a corrupted sin. हर लोग जो है अलग अलग ऐसे पाप है जो खराब वाले पाप करते हैं। Whatever sin it might be. शायद वो जो कुछ भी पाप हो, Sin through our mouth, हमारे मुंह से पाप करना, sin through our thoughts, हमारे सोच से पाप करना, sin through our heart, हमारे हृदय से पाप करना, our actions, हमारे कार्य के द्वारा, our hands, हमारे हाथों के द्वारा, our words, हमारे शब्दों के द्वारा, our ears, हमारे कानों के द्वारा, even nose, और नाक से भी what you smoke. कि जो आपने स्मोक किया है। God wants to do a new work in our church. प्रभु हमारे कलीसिया में नया काम को करना चाहता है। And God wants to tell us, be like David. और प्रभु हमसे कहना चाहता है कि दाऊद जैसा बन। He was rich, वो धनवान था, he had everything, उनके पास सब कुछ था, he humbled himself अपने yet. आप को फिर भी उसने नम्र किया। When Nathan came to David and told him, जब नेतन ने दाऊद के पास आकर उनसे कहा, there may be many different types of sin that everyone here may be struggling with. शायद आप बहुत से ऐसे अलग अलग प्रकार के पापों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं इस समय। And David prayed this prayer through confession. और प्रायश्चित करते हुए दाऊद ने इस प्रार्थना को किया। The whole chapter is his confession. और पूरा जो अध्याय है उनका पापों का प्रायश्चित है, It's repentance. उनका पछतावा है।
We are going to look at the first 10 verse today. और पहला 10 वचनों को हम इस समय देखेंगे And after that, we are going to spend time and ask God to help us today. और उसके बाद हम समय बिताएंगे ताकि हम प्रभु से मदद मांग सके, हमें मदद कर सके। We want to prepare our heart and we want God to just cleanse us and pour His power upon our lives. ताकि परमेश्वर हमें शुद्ध कर सके और हमारे ऊपर अपने सामर्थ को ताकि उंडल सके। When David was confronted of his sin by this prophet, जब इस नबी के द्वारा दाऊद को पाप को दिखाया गया, समझाया गया, he was not angry with the man of God. वो प्रभु के जन के साथ उसने गुस्सा क्रोधित नहीं हुआ, He did not defend himself. अपने आप को उसने अलग दिखाना नहीं चाहा, He did not give another story. उसने कुछ और कहानी नहीं बताए। When he came face to face, जब उसने चेहरे से चेहरे आया, David was honest enough. और दाऊद उस समय ईमानदार रहा, And this is what he prayed. और दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया। The first thing that David did was he pleaded for mercy. पहला चीज उसने किया कि वो दया के लिए उसने विनती की। He didn't say, well, that was just by mistake. उसने नहीं कहा चलो गलती से हो गया। We don't sin by mistake. We sin by intention. हम गलती से पाप नहीं करते, लेकिन जानबूझकर पाप करते हैं। Even when the Holy Spirit tells us, we take that step towards sin. जब पवित्र आत्मा हमें बोलते हैं, फिर भी हम उस पापों का कदम को लेते हैं। No one sins by mistake. कोई भी गलती से पाप नहीं करता, No one says those words by mistake. कोई भी उस शब्दों को गलती से नहीं बोलता, No one clicks that button on the computer by mistake. कोई भी उस कंप्यूटर का बटन को बिना नहीं जाने क्लिक नहीं करता, No one goes to that websites by mistake. कोई भी उस वेबसाइट पे गलती से नहीं जाता, No one accuses by mistake. कोई भी किसी को दोषी नहीं ठहराता मिस्टेक से, No one gossips by mistake. कोई भी अनजाने में किसी के बारे में चुगली नहीं करते, No one disrespects by mistake. कोई भी किसी का निरादर नहीं करता बिना जाने, No one is stingy by mistake. कोई भी ऐसा आलसीपन नहीं करता बिना जाने, No one is disrespectful by mistake. कोई भी किसी को ऐसे ही बिना जाने निरादर नहीं करता, No one lies by mistake. कोई भी अनजाने में झूठ नहीं बोलता, No one hates by mistake. कोई भी किसी को बिना अनजाने में किसी से नफरत नहीं करता। Every sin we commit through intention. जो कुछ भी पाप हम पाप करते हैं वो हम जानकर करते हैं, We intentionally do that. हम उद्देश्य होकर ही वो करते हैं, We intentionally hurt. हम जानकर ही लोगों को ठेस पहुंचाते We हैं, intentionally hurt. हम जानकर ही लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, We intentionally do everything to cause a heartache to the neighbor. और सब कुछ हम जानबूझते हुए हम क्या करते हैं, लोगों को हम ठेस पहुंचाते हैं And to yourself. और खुद को भी। So, my sin and your sin is never by mistake. और मेरा और आपका पाप कभी भी जो है अनजाने में नहीं होता। What you need and I need is not, oh God, I did it by mistake. हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हाँ प्रभु जो कुछ भी मैंने किया अनजाने में किया। What you need and I need is a pleading for mercy from God. और आपको और मुझे क्या जरूरत है कि हम प्रभु से अनुरोध कर सके, Oh God, have mercy upon me. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। David pleaded for God's mercy. दाऊद ने प्रभु की करुणा के लिए उसने दुआ की। He began by saying, have mercy upon me, oh God. हे परमेश्वर अपनी करुणा मुझ पर बरसा। What you and I need daily in our life is God's mercy and His loving kindness. हर दिन हमें क्या जरूरत है कि प्रभु की दया और उनकी प्रेम की आवश्यकता है। Oh God, have mercy upon me. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। I'm not coming to defend myself. मैं खुद को यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा Oh हूँ, God, I'm not coming here to give an explanation of my sin. मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहा हूँ खुद के बारे में। Oh God, I'm not coming here to just cover up myself. मैं मेरे पाप को यहाँ पर ढकना नहीं चाह रहा हूँ। Oh God, I need your mercy and your loving kindness upon my life. परमेश्वर मुझे आपकी क्षमा और आपके प्रेम की जरूरत है यहाँ पर। God, have mercy upon me. प्रभु आप मुझ पर दया कर, Because you are tender
क्योंकि आप जो है बहुत नरम है, Lord, you're compassionate. आप स्नेहमय हैं, According to thy tender mercy, और आपके नर्म और स्नेहमय के द्वारा Lord, blot out my transgressions. मेरे हर एक बुराइयों को आप हटा दीजिए। What a noble prayer of confession. कितना प्रायश्चित वाले यह प्रार्थना है। अच्छा, And this is what you and I should come to God with. और इसी से हमें जो है प्रभु के सम्मुख में आना है। Never with defense. कभी भी आपको खुद को आप डिफेंड ना करें, Never with an excuse. कभी भी आप बहाना को ना दे, Never with an explanation. कभी भी आप वर्णन को ना करें। When we come before the throne of mercy, जब हम प्रभु के सिंहासन के सम्मुख आते हैं, we need to come with honest confession before God. और हमें ईमानदार और सही मन से प्रायश्चित करते हुए आना है। Have mercy upon me, O God, हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया कर, according to thy loving kindness. और अपनी दया के अनुसार। O God, according to thy tender mercies, please blot out my transgression. और मेरी अपने दया के अनुसार मेरे सारे अपराधों को मिटा दे। We want God to blot away our sins. हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे हर एक अपराधों को मिटा सके। We can't be taking that transgressions as a burden on our shoulder daily. क्योंकि हम हर दिन उस अपराध को हमारे शरीर के ऊपर हम बोझ के समान नहीं ले पाएंगे। The first thing, when you know about your sin, you need to plead God for his mercy. सबसे पहली बात, जब अपने पाप के बारे में जानेंगे, आप प्रभु से आपको अनुरोध करना है दया के When लिए। you start explaining, जब आप खुद ही वर्णन करने when लगेंगे, you start defending, जब आप खुद को रक्षा करने के लिए when कोशिश you करेंगे, give excuses, जब आप बहानाएं देने शुरू करेंगे, you know, that's why people, if I have hurt you, please forgive me. अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई तो मुझे क्षमा कर दे, If I have said this, please forgive me. अगर मैंने ऐसा कहा तो मुझे क्षमा कर दे। Those are not real confessions. उसको हम असली पश्चाताप नहीं कहते। Those are like, I'm trying to be humble, huh? Just, I have not done, but if, that's not genuine confession. अब लोग कैसे कहते हैं, अगर मैंने किया तो, अगर मैंने आपको ठेस पहुंचा तो उसको हम सही वाला कन्फेशन नहीं करते हैं। Oh, and how we little small grasshopper people, we go to the throne of grace and say, Lord, if I have hurt you, if I have sinned, please forgive me. और हम प्रभु के समूह में वैसा ही करके जाते हैं, प्रभु अगर मैंने पाप किया, प्रभु मैंने अगर गलती करी तो मुझे क्षमा कर। When we use that word if, we are telling God, I have not, but if you think that I have, please have mercy, okay? तो हम वही शब्द को इस्तेमाल करते हैं, यदि अगर मैंने किया तो मुझे क्षमा कर दे। Never use the word if in your confession. आप अपने पश्चाताप के दौरान कभी भी इस शब्द को इस्तेमाल ना करें, यदि शब्द Be को, it with God, चाहे वो प्रभु के साथ हो, be it with your spouse, या फिर अपने पति be के it with साथ your हो, parents, अपने माँ बाप के साथ हो, be it with your friends, आपके दोस्तों के साथ हो, be it in the church. या फिर कलीसिया में हो, Never use the word if for your confession. अपने पश्चाताप के लिए आप कभी भी इस शब्द को इस्तेमाल ना करें। अगर You use the word if because you are not honest. आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर, क्योंकि आप ईमानदार नहीं। You use the word if because you think you did nothing wrong. आप उस शब्द अगर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ गलती नहीं की। You use the word if because you want to say that I'm better than you, but look, I'm trying to humble myself. आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे भी बेहतर हूँ, क्योंकि देखो मैं खुद को नम्र करना कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। I have hurt you. हाँ, मैंने तुम्हें ठेस पहुँचाया। I have sinned. हाँ, मैंने पाप किया। I have done this wrong. हाँ, मैंने ये गलती करी है। I need your forgiveness. मुझे आपकी क्षमा की I जरूरत है। need your mercy, O मुझे God. आपकी दया की जरूरत है। Have mercy upon me, O God. ये परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, And according to thy loving kindness, और आपके दया के अनुसार, according to thy tender mercies, आपके स्नेहमय प्रेम के अनुसार blot out my मेरे transgression. सारे अपराधों को मिटा दे। If you plead for God's mercy, अगर आप प्रभु के दया के लिए अनुरोध करेंगे, you need to stop these three things in your confession. अपने पश्चाताप के दौरान आपको 3 चीज को बंद कर देनी चाहिए। Stop giving excuses बहाना देना बंद करना है for your sin. अपने पाप के लिए, Stop defending your sin. खुद को रक्षा करने के लिए बंद करना है, Stop giving an explanation about your और sin. या फिर आप समझाने का बंद कर देना है। Come to God, प्रभु के सम्मुख आए, be honest, आप ईमानदार रहें and say, God, और कहें, प्रभु I need your mercy. मुझे आपकी दया की जरूरत है। Have mercy upon me, O Lord, मुझ पर दया कर हे प्रभु, according to thy loving kindness, अपने अनुग्रह प्रेम के अनुसार according to thy multitude of thy tender mercies. और अपने बड़े दया के अनुसार
blot out my transgression. मेरे अपराधों को मिटा दे। Seek for God's mercy today. आज आप प्रभु की दया के लिए आप खोजें, Whatever your sins, चाहे आपके पाप जो भी हो, whatever you are holding in your heart, जो भी आप अपने हृदय में धरे रखा है, whatever is your baggage or burden that you're carrying it, जो भी पाप का बोझ आपने पकड़ के रखा है, today, आज you plead for God's mercy प्रभु की दया के लिए आप अनुरोध करें and ask God और प्रभु से आप मांगे to blot away your ताकि transgression. आपके हर एक अपराधों को वो मिटा सके। I know we talk to God every day, Lord, forgive my sins. हम हर दिन प्रार्थना करते रहेंगे, हाँ प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, If I've done anything, please forgive me. अगर मैंने कुछ गलती करी है तो मुझे माफ कर दे। Never pray in that manner. उस प्रकार की आप प्रार्थना ना करें Tell the Lord exactly what you did और जो भी आपने गलती की है उसको आप प्रभु को बताएं, without giving an explanation, Bina- excuses. बिना कोई बहाना दिए, बिना कोई समझाए। God never forgives a sin that is not confessed right. जो सही तरीके से पाप पश्चाताप नहीं की जाती, परमेश्वर उसका क्षमा नहीं करता। No, you may think that you are forgiven. आपको लगता लगेगा कि हाँ प्रभु ने क्षमा कर दी। When it comes to sin, God is not in the business of winking his eyes. जब पाप की बारी आती है वहां पर परमेश्वर इसे बिना सोच से समझे वो माफ नहीं करता। God wants to know if you're really sorry for the sin that you committed. प्रभु जानना चाहते कि जो भी आपने पाप किया उसको लेकर आप ईमानदार है कि नहीं। So don't generalize your sin before God. तो आप अपनी पाप को ऐसे खुलेआम या फिर सब मिलकर ना बता दें। And say, God, please forgive my sin. प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे। Go tell God, Lord, आप कहें जो भी आपने किए हैं प्रभु, I've gossiped about this brother. मैंने इस भाई के विरुद्ध मैंने पीठ पीछे बात की I've है, caused this hurt for this sister. मैंने इस बहन को ठेस पहुंचाई है। Be honest. आप उसको लेकर ईमानदार बने, God will heal you. प्रभु आपको चंगाई को देगा, God will forgive you. प्रभु आपको क्षमा करेगा। God, I did this. प्रभु मैंने ऐसा काम किया है, I did that today. मैंने वैसा गलत काम किया है। Lord, I'm not supposed to watch this. I watched it प्रभु today. मुझे ये देखना नहीं था लेकिन मैंने फिर भी देखा। Lord, I shouldn't have said those things to this brother. I said this thing. मैंने इस भाई को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने कह दिया। Lord, I hurt this sister. मैंने इस बहन को ठेस पहुंचा दिया। Lord, today I sinned against you by doing this. प्रभु मैंने ये बोलने के द्वारा आपके विरुद्ध पाप किया है। A sin that is confessed honestly is a sin that is forgiven completely. जो पाप ईमानदार से मांगा जाता है माफी के लिए, वो पाप को क्षमा दी जाती है। A sin that is confessed honestly is a sin that is forgiven completely. जो पाप ईमानदारी से मांगा जाता है वो पाप पूरी तरीके से क्षमा भी दी जाती है। Too many Christians are carrying the burden of sin on their shoulder, thinking they are forgiven by giving excuses to God. बहुत सारे मसीह लोग पाप का बोझ को अपने कंधे पे लेके रखा हुआ है क्योंकि उन लोग को लगता है कि प्रभु ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। David didn't cover his sin. दाऊद ने अपने पाप को नहीं ढका David asked God for forgiveness. लेकिन उसने पापों का क्षमा मांगा। Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। Oh God, wash me. प्रभु आप मुझे शुद्ध कर। David knew that only God could cleanse him. दाऊद जानता था कि केवल परमेश्वर उन्हें शुद्ध कर सकता No है। pastor can forgive your sin. कोई भी पासवान आपके पाप को क्षमा नहीं कर No सकता। priest can forgive your sin. कोई भी याजक आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता। No gurus will forgive your sin. कोई भी गुरु वगैरह आपके पाप को क्षमा नहीं कर No सकता। prophet nor apostle. कोई नबी नहीं, कोई प्रेरित नहीं, Only God can wash away your sin. केवल परमेश्वर आपके पाप को धो सकता है। Wash me truly from mine iniquity and cleanse me from my sin. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। What a prayer to pray. कैसा अद्भुत प्रार्थना ये प्रार्थना करने के लिए। He didn't just wipe away his prayer of confession. ऐसा नहीं कि उसने बस आगे जाते रहा प्रार्थना करते हुए। Oh, how many times you and I have prayed, Lord, forgive my sin. बहुत से समय हमने प्रार्थना की रहेंगे, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, And we never said, what was that sin? लेकिन हम नहीं बताते कि कौन से पाप, Because we have thousands of sin that we commit every day. क्योंकि हर दिन हजारों पाप हम करते जो हम हर दिन करते हैं And we hold it on and put it in a baggage and carry it as a burden. और हम पाप का बोझ बनाकर हम अपने कंधे में लेकर घूमते And then रहते we हैं come to a point where we think that everything is fine and we walk like a righteous people. और हमें लगता है कि हमारा जीवन में सब कुछ सही और हम धार्मिक व्यक्ति जैसे हम चलने लगते हैं। David is teaching us दाऊद यहाँ पर हमें सिखाता है honesty. कि ईमानदारी। Wash me truly from my iniquity and cleanse me from my sin. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। Verse number 3 is acknowledgement.
वचन 3 यहाँ पर पहचानना। First is you plead for God's mercy. सबसे पहली बात आपको अनुरोध करना है प्रभु की दया के लिए। Before anything happens, you plead for God's mercy. चाहे ऐसा होने से पहले आप प्रभु की दया के लिए अनुरोध करें। Verse number 3, for I acknowledge my transgressions, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ and my sin is ever before me. और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता Lord, है। I know this is what I've done. प्रभु मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा काम किया है। I acknowledge it, oh God. मैं अभी उसको समझता I'm हूँ। not going to defend my sin. मैं खुद को रक्षा नहीं करूंगा। I'm not going to give an explanation. मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं। I'm not going to give an excuse for my sin, oh मैं मेरे Lord. पाप के लिए बहाना नहीं दूंगा प्रभु। I acknowledge my sin. I'm wrong. हाँ, मैंने पहचाना कि मैं गलत हूँ। I am the one who is to be crucified. मैं ही वो जो मुझे क्रूस पे लटकाने की आवश्यकता है। For I acknowledge my transgression, कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ and my sin is ever before me. और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। Does your sin disturb you? क्या आपका पाप आपको परेशान करता है? Or we just overcome all these things? या फिर इन सब चीज़ों को हम अतिक्रम कर जाते हैं? It no longer disturbs us. या फिर वो हमें और परेशान करता ही It's नहीं? become a part of our daily life. In our devotion, sits with us like a friend. या फिर हम हर दिन हमारे जीवन में हम उसको संगी बनाकर या फिर अपना साथी बनाकर हम चलते हैं? Or does our heart just say, or it no longer does that? या फिर हमारे हृदय में जो धड़कन धड़कती है वो धड़कना बंद हो जाता है? You know why our hearts no longer beats faster? जानते हैं हमारा दिल अभी धड़कते क्यों नहीं जोर से? Just stop acknowledging our sin. क्योंकि हम खुद को पहचाना बंद कर दिए Stop हैं। being honest with our sin. हमारे पाप को लेकर हम ईमानदार बनना नहीं चाहते हैं। There is one person that you should be fearful of. एक व्यक्ति को आपको जो है डरना है, God. परमेश्वर। And there are two people that you should be afraid of. और ऐसा दो व्यक्ति जिनसे आपको डरने की आवश्यकता है, Sin and Satan. पाप और शैतान। These two people can destroy you. क्योंकि ये दो आपको नष्ट कर सकता But है। if you fear God, लेकिन अगर प्रभु का भय मानेंगे God can protect you. तो प्रभु आपको रक्षा करेगा। The problem is you are not afraid of sin. समस्या है कि आप पाप से डरते We नहीं, are not afraid of Satan. शैतान से आप डरते नहीं। We think, I'm powerful. I got the Holy Ghost. I'm a Christian. I'm not afraid of the devil. मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मसीह हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मुझे शैतान से डर नहीं। And we flirt around the salad that He has prepared for us. जो सलाद हमने तैयार किया उसके साथ हम खिलवाड़ कर देते हैं। You're flirting with the devil. शैतान के साथ खिलवाड़ कर जाना, We're not afraid. शैतान के साथ नहीं डरना, Flirting with the sin. पाप के साथ खिलवाड़ करना We're not afraid. और डर नहीं। We have made up an explanation for everything. सब चीज़ों के लिए हमने क्या कर दिया? हमने विश्लेषण कर दिया। And God says there's no honesty. प्रभु कहता है कि और कोई ईमानदार है ही नहीं। There is no honesty in heart. लोगों के हृदय में कोई ईमानदार वाली है ही नहीं कोई चीज़। But as a Christian, you and I should come and acknowledge before God. लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें जो है अपने पाप को पहचानना है। Lord, my sin is ever before me. प्रभु मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर है। My sin is taunting me. मेरा पाप मुझे मेरे और इशारा कर रहे हैं। My sin is disturbing me. मेरा पाप मुझे परेशान कर रहा है। Sorry, oh God. मुझे आप माफ़ करें पिता, I am wrong. मैं गलत हूँ। I acknowledge it. मैं अभी उसको पहचानता हूँ पिता। David acknowledged his sin. दाऊद ने अपने अपराध को समझा। Unless जाना। and until you and I acknowledge our sin, we cannot be forgiven, dear beloveds. जब तक हम हमारे पाप को खुद नहीं जानेंगे पहचानेंगे हमें क्षमा नहीं मिलेंगे मेरे प्रियो। Third is we see David compassion. तीसरी बात हम देखते हैं कि दाऊद जो है कितना स्नेहमय है। David is seeking compassion. दाऊद स्नेह के लिए वो ढूंढता है। The third thing is David confessing his sin. तीसरा दाऊद जो है अपने पापों का पश्चाताप करता है। First thing is he pleaded for mercy. पहला वो प्रार्थना माफ के लिए वो अनुरोध करता है। Then he acknowledged his sin. वो अपने पाप को जानता है। And now he's pleading and now he's confessing his sin. अभी वो अपने पाप का पश्चाताप करता है। And this is what he says. और वो यूं कहता है।
This is the most important verse और ये in regard to sin in our life. और हमारे जीवन में पाप को लेकर ये सबसे जरूरी वचन है। David, thank God, David was not like Adam and Eve. धन्यवाद हो कि दाऊद जो है आदम और हवा के जैसा नहीं था। Lord, the woman that you gave me, she made me to eat. प्रभु जो स्त्री आपने दिया है वो मुझे खाने में उसने ललसाया। Lord, the serpent that came in the garden, he deceived me. प्रभु जो सांप वहां पे बगीचा में मुझे उसने भरमाया। David was not like Adam and Eve. दाऊद आदम और हवा के जैसा नहीं था And David was not like you and me. और दाऊद आप और मेरे जैसे नहीं थे। David was David, दाऊद दाऊद था, a man after God's own heart. ऐसा प्रभु जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला। And you know what he said? जानते वो क्या कहता है? Against thee मैंने and केवल thee only have I sinned. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। God, परमेश्वर against thee and thee only have I sinned मैंने केवल- and done this evil in thy sight. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया है। I mean, for such a great man to become so humble, इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद भी वो नम्र होता है, to plead for God's mercy and acknowledge his sin. प्रभु को प्रार्थना की क्षमा की अनुरोध And करता है। when he confessed, he made it so personal. He says, "Oh God, I have sinned against you and you only. और जब वो पश्चाताप करता है वो कहता है कि प्रभु मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है And this evil I have done in thy sight, O God. और इस बुराई को मैंने तेरे दृष्टि में किया है, Because I knew when I did that sin, you were watching. क्योंकि मालूम है कि जब मैं पाप कर रहा था आप तब देख रहे थे And you told me not to do it by thy spirit. और आपकी आत्मा के द्वारा आपने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, And God, I disobeyed you and I took another step. लेकिन आपके आगे को ना मानकर मैंने आगे के कदम को ले लिया। Oh God, against thee and thee only have I sinned मैंने केवल तेरे और तेरे ही विरुद्ध ही पाप किया है and done this evil in thy sight, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक He ठहरे। says, Lord, you can do whatever you want because I deserve your punishment. प्रभु चाहे आप जो कुछ भी चाहे आप कर सकते हैं क्योंकि मुझे जो है इस पनिशमेंट की जरूरत है। You can say and judge me the way you want. I deserve it. I've sinned against you, God. प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे आपके पनिशमेंट की मैं हकदार हूँ पिता। That's the way to pray, dear friend. वैसा ही हमें प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रिय, That's the way to confess your sin. वैसा ही हमें पश्चाताप करना चाहिए। It's not going and kneel down in front of a box with holes and say to a man some of your sin. ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे छेद है वहाँ पर उस जगह में जाकर आप अपने पापों को पश्चाताप करें। Remember that as a Catholic, what you did? एक कैथलिक होने के बाद आप क्या करते थे उस समय? Some people go now and dip themselves in a water and thinking their sins can be washed away. कोई पानी में जाकर डूबते हैं और उन लोगों को लगता है कि उन लोगों का पाप क्षमा हो गया, Or you cut a goat and think that your sins are forgiven. या फिर आप बकरी काट कर आपको लगता है कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे इससे। You go to God. आप प्रभु के सम्मुख जाइए, You plead for mercy. आप दया के लिए अनुरोध करें, You acknowledge your sin. अपने पाप को आप जानें And you confess your sin. और अपने पापों का पश्चाताप करें Make it personal. और आप अपने खुद का व्यक्तिगत बनाइए। Against thee and thee only have I done this, O God. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है Against परमेश्वर, thee have I sinned आपके विरुद्ध मैंने पाप किया and done this evil in thy और sight. तेरी दृष्टि में बुराई को किया है। Lord, whatever you do, you will be always right. चाहे प्रभु आप जो कुछ भी करें आप हमेशा सही होंगे, Your judgment is true. आपका न्याय सही है। If you judge me to be destroyed, you will always be अगर right. आप मुझे नष्ट करने के लिए न्याय करेंगे आप हमेशा सही होंगे। But God, I plead for your mercy. लेकिन प्रभु मुझे आपके दया के लिए जरूरत है। Whatever judgment you give me, चाहे आप जो कुछ भी न्याय मुझे देंगे, whatever punishment that you give me, जो कुछ भी दंड आप मुझे देंगे, you will be right always, O आप God. हमेशा सही होंगे But, परमेश्वर। oh God, I need your mercy. लेकिन प्रभु मुझे आपकी करुणा की जरूरत है, I plead for your mercy. मुझे आपकी करुणा की, I need your loving kindness. आपकी प्रेम की जरूरत है। Oh God, will you blot out my transgression? क्या मेरे अपराधों को आप क्षमा कर सकते हैं? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मेरे पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। Now, this is true that you are not a sinner because you commit sin. ऐसा ना कि आप पाप करते हैं इसलिए आप पापी हैं,
The truth is, you sin because you are a sinner. सच बात है कि आप इसलिए पाप करते हैं क्योंकि आप एक पापी हैं। And we are all born in sin. हम सब लोग पाप में पैदा हुए And God understands this. God knows that sin that we are born in. और परमेश्वर उसके बारे में जानता है जो पाप में हमने पैदा हुआ। You don't have to teach your children to tell lies. आपको अपने बच्चों को झूठ बोलने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं। They will lie anyway. उन लोग जैसे भी उन लोग झूठ बोलेंगे ही, Sin is in them. क्योंकि पाप उनमें है। We're all conceived in sin. और हम सब लोग पाप में पैदा हुए। And that's what David says. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. इसलिए दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। You know, while he is confessing his sin, he is worshiping God also. और जब वो पापों का प्रायश्चित कर रहा होता है, उस समय वो प्रभु की आराधना भी कर रहा You होता know है। how we worship God? जानते हैं हम कैसे प्रभु की आराधना करते हैं? Sometimes we sing by singing is what we worship God with. और हमें लगता है कि जो हम गीत गाते हैं उसके द्वारा प्रभु की आराधना The कर रहे modern होते day हैं। charismatic things have ruined everything called worship. क्योंकि जो कैरिस्मेटिक की चीज जो है वो सब कुछ खराब कर दे उन लोगों ने They वर्शिप को think by लेकर। singing for 1 hour means they have worshipped God. उन लोगों को लगता है कि 1 घंटा गाने से हम प्रभु की आराधना करते हैं। That's not how you worship God. वैसा आपको आराधना नहीं करना है। You worship God by exalting Him. आप उनको बढ़ावा देकर आप आराधना करें। You worship God by giving glory to Him. आप उनको महिमा देने के द्वारा उनकी आराधना करें। You worship God by bringing the most precious thing to Him. सबसे कीमती चीज को उनके सम्मुख लाकर आप You आराधना read in करें। the Bible, every time people came to worship, they gave the precious things to God. लोगों ने जब कभी उन लोगों ने प्रभु की आराधना करने के लिए आए, उन लोगों ने सबसे कीमती चीज को प्रभु को दिया है। And this is the truth. You can never worship God without giving. और ये सच बात है, बिना देकर आप प्रभु की कभी भी आराधना नहीं You कर can सकते। never worship God without bringing an offering to God. कभी भी आप ऑफरिंग बिना ले आए आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। That's in the Bible. वो बाइबल में है। Every time people worship, they brought an offering to God. जब कभी लोगों ने आराधना किया उन्होंने हमेशा भेंट को लेकर आए। David is worshiping God as he is confessing and acknowledging. जैसे वो पश्चाताप कर रहा है, अपने पाप को पहचान रहा है, वो प्रभु की आराधना भी करता है। Behold, thou desirest truth in the inner parts. देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है And in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. और मैंने तेरी महिमा को ज्ञात सिखाया है, जाना है। He talks about God's goodness and और- greatness. और प्रभु की अच्छाई और महानता के बारे में बात करता He है। talks about God's character. Oh God, I know this is what you desire from my inner parts. और वो कहता है कि मेरे अंदर चीज से आप यही इच्छा को रखते हैं। Look at myself आप मुझे देखो and I look at you. और मैं तुम्हें देखता हूँ। Thank God she does not know what is in my heart. उसको प्रभु को धन्यवाद हो कि जो मेरे हृदय में वो नहीं And जानती that's है, why she can shake hands with me. इसलिए वो मेरे साथ हाथ मिला सकती है। Thank God I don't know what's in her heart. मुझे धन्यवाद हो कि मैं उनके हृदय में जो है मुझे नहीं मालूम, And that's why I can shake hands with her. इसलिए मैं उनके साथ हाथ मिला सकता हूँ। Imagine you knew whatever is going on in my heart. सोचो आप जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है इस समय। Imagine I know what's going on in your heart आप right सोचो now. कि आपके हृदय में जो कुछ चल रहा है मुझे पता है इस समय। You and I would never shake hands with each other. हम एक दूसरे से कभी भी हाथ नहीं मिलाते। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? We would never shake hands with each other. हम कभी भी एक साथ हाथ नहीं मिलाते। If I knew what's in your heart and you knew what's in my heart, अगर मैं जानता you कि and I would never shake hands अगर together. मैं जानता कि आपके हृदय में क्या है, आपके हृदय में क्या है, तो हम कभी हाथ नहीं मिलाते। God covered that just for him. प्रभु ने उनके लिए बस उसको ढक दिया है। Only God can see it. केवल परमेश्वर देख सकता है। And God desires honesty in our inwards. और प्रभु उसको इच्छा को रखता था कि हमारे हृदय में ईमानदारी वाले हृदय हो सके। Behold, it says, behold, thou desirest truth in the inward parts. देखो तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। We can say many things with our tongue. हम हमारे जुबान से बहुत कुछ कह सकते हैं। Truth comes out from the heart. सच्चाई हृदय से बाहर निकलता है। That's true. वो सच बात है। Truth does not come from the tongue, it comes from the heart. सच्चाई जुबान से नहीं लेकिन हृदय से निकलता है। And God says, I desire what? और प्रभु कहता है Truth in the inward parts. तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न And in होता the है hidden part thou shalt make me to know wisdom. और मेरे मन में ही मैं ज्ञान सिखाएगा। And then he surrenders himself. और अपने आप को वो समर्पित करता है। This is how we confess our sin. और वैसे ही हम पापों का पश्चाताप करते हैं। Lord, I surrender myself. प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूँ। David surrenders himself to God. दाऊद ने अपने आप को प्रभु में समर्पित किया। David says, I raise my hand, O Lord. मैं अपने हाथ को उठाता हूँ प्रभु, I am good for nothing. मैं कोई भी चीजों में अच्छा नहीं हूँ। I surrender.
मैं खुद को समर्पित करता Lord, हूँ। here am I surrender. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं समर्पित You करता can हूँ। arrest me. आप मुझे अरेस्ट कर You सकते can do हैं, whatever you want with चाहे me. जो कुछ भी आप चाहते हैं कर सकते हैं मेरे Lord, साथ। I surrender. प्रभु मैं आपके नाम पर समर्पित करता हूँ। This is what he says in verse number 7. वचन 7 में वो यूं कहता है, Purge me with hyssop, जूफा से मुझे शुद्ध कर and I shall be clean. तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। Wash me, मुझे शुद्ध कर and I shall be whiter than snow. और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। This morning we came here dressed up very well to worship God. इस सुबह को हम अच्छे से पहनकर यहाँ पर प्रभु की आराधना के लिए आए हैं। And so wonderful that is. बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। We all look like the whitewashed sepulchres. हम सब लोग शुद्ध हुए हुए जैसे लोग लगते हैं यहाँ पर। Clean, सब लोग साफ, beautiful, खूबसूरत, handsome, बहुत ही अच्छे दिखने वाले, well अच्छे dressed. से पहना हुआ, And God desires that. और प्रभु उसको इच्छा को रखता And है। thank God you honor God with your dressing. और प्रभु को धन्यवाद हो, आपने पहनावा के द्वारा प्रभु का आदर Thank देते हैं। God that you don't treat God like he's not an important person. प्रभु को धन्यवाद हो कि आप प्रभु के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसे हाँ प्रभु मेरे लिए कोई जरूरत नहीं। You know, for the marriage, the bride and the groom, they dress up well. शादी के लिए दुल्हा दुल्हन अच्छे से हम लोग पहनते हैं। Before the marriage, when the boy and the girl tries to meet, they dress up well. जब शादी से पहले जब लड़का लड़की मिलने के लिए जाते हैं तो उन लोग अच्छे से पहनते When हैं। you go for an interview for your job, you dress up well. जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, अच्छे से पहन के जाते हैं उस समय। Because we give honor to that person that we are meeting. क्योंकि जिस व्यक्ति से हम मिलने वाले हैं उसको हम आदर देना चाहते When you हैं। dress up well means you respect the other person. जब हम अच्छे से पहनते हैं यानी कि आप दूसरे व्यक्ति को आदर दे रहे हैं। Unfortunately, Christians have become such a big hypocrite in the world today. They don't treat God in the highest level today. लेकिन आज के समय में मसीह लोग जो है कपटी जैसे बन गए, उन लोग ऊंचाइयों में जाकर प्रभु को उन लोग सम्मान आदर नहीं देते हैं। God becomes the least important person, so we just treat him like anything with whatever we want to dress. तो आज के समय में प्रभु बहुत कम वाला आदर हो जाते हैं, जहाँ पर लोग जैसे मर्जी वैसे उन लोग बर्ताव करते हैं। Thank God you don't do that. लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आप वैसा नहीं करते Thank हैं। God you honor God. प्रभु को धन्यवाद हो कि आप प्रभु का आदर करते हैं। Now, while we have all come here honoring God with our best, जैसे हम सब लोग अपने अच्छे बेहतर चीजों को लेकर आदर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, maybe we walked inside this door in this room जैसे with still burdens and baggages of unconfessed sins in our heart. जैसे हम यहाँ पर चल के हुए आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा पाप हमारे अंदर छिपा हो जब अभी तक क्षमा हमने नहीं पाए हैं या फिर प्रायश्चित नहीं किए हैं। And that's why we need to pray today. इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है। And you know what God can do today to you? जानते हैं आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है? He can make you whiter than snow. वो आपको बर्फ से भी ज्यादा सफेद बना सकता है। Whiter than snow. बर्फ से भी ज्यादा सफेद बना सकता है। You know what we need? जानते हैं हमें क्या जरूरत है? Surrender. हमें समर्पित करना Lord, है। I will not become the smartest person here. प्रभु मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार इंसान नहीं बनना I चाहूंगा। won't try to give an explanation, excuses, and give a whatever it is. I just surrender. Lord. मैं यहाँ पर कुछ बहाना या फिर समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पर समर्पित करता हूँ। पिता Purge me with hyssop. आप मुझे शुद्ध I कर shall be clean. और मैं शुद्ध हो Wash जाऊंगा। me, मुझे धो and I shall be whiter than और मैं snow. हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। Lord, I surrender. प्रभु मैं समर्पित करता हूँ। And when you confess your sin, जब अपने पापों का पश्चाताप now करेंगे, here it is. Here the devil enters. शैतान यहाँ पर देखो, When you confess your sin, जब अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, you need to believe that God has forgiven your आपको sin. विश्वास करना कि परमेश्वर आपके पापों का क्षमा किया है। Because otherwise, Satan always wants to tell you, you're still a sinner. God never forgave you. नहीं तो शैतान बोल देंगे हाँ तुम अभी भी पापी हो, तो परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा नहीं किया। You need to confess regularly. Come on, same thing. Every always. Come on, do it again. तुम्हें दोबारा करना है, दोबारा क्षमा मांगना है। And that's why sometimes we still confess our sin, what we committed 2 years back, and we continue to confess, continue to forget, because we have not believed God and showed the faith in God. इसलिए कभी कभार जो 2 साल पहले हमने पाप किया उसको हम दोहरा कर हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया है। Confessing the same sin again and again is a demonstration that you don't have faith in God. एक ही पाप को बार बार क्षमा मांगते रहना, यानी कि आप जो है प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। When you have honestly confessed your sin, जब पूरे ईमानदार से पापों का पश्चाताप करते you हैं, acknowledged your sin, जब अपने पाप को समझते हैं, and you confessed your sin,
जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, and you surrender to God, प्रभु को अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हैं, then you need to believe that I have confessed and God has forgiven और me. आपको विश्वास करना कि मैंने पश्चाताप किया और प्रभु ने मुझे क्षमा दिया, That is called faith. उसको हम कहते हैं विश्वास। You need to believe that God has forgiven me. आपको विश्वास करना कि प्रभु ने मुझे क्षमा दिया You है, need to receive His forgiveness. उनकी क्षमा को ग्रहण करना है। Say, Lord, I thank you for forgiving और me. कहना है प्रभु मुझे धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे So क्षमा किया। you know, David shows expectation. दाऊद यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन को Verse दिखाता number है। 8. वचन 8 को दिखाएं, Make me to hear joy and gladness. मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, That the bones which thou hast broken may rejoice. जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। You know what? When we break our bones, what happens? जब हड्डियां टूट जाती है उस समय क्या होता है? It hurts. दर्द होता है। David is speaking about his spiritual bones. दाऊद अपनी आत्मिक हड्डियों के बारे में कहता है यहाँ पर, It hurts. दर्द होता है। But when confession is done, जब पश्चाताप की जाएंगे, you know, when your bone is broken जब आपकी हड्डियां टूट जाती है उस and समय, then it heals उसके बाद चंगाई हो जाती है because it is restored, क्योंकि उसको सही से किया गया you है। know what वापस। happens to that bone? जानते हैं उस हड्डी को क्या होता है उस समय? It becomes more stronger. और ज्यादा मजबूत हो जाता A है। restored stone is more stronger than any bone. और I mean, वो- a restored bone is more stronger than any other bone. जो दोबारा जो हड्डी जुड़ जाता है वो सबसे बेहतर और अच्छा मजबूत हो जाता है। David believed in God's forgiveness. दाऊद ने प्रभु के क्षमा के ऊपर Now उसने विश्वास David is किया। asking God to fill joy in his heart. अभी दाऊद कहता है कि मेरे हृदय में आनंद को भरने के लिए Make me to hear joy and gladness. मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, That the bones which thou hast broken may rejoice. जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। Lord, I had all this ill feel and I had this discouragement and disappointment and a low spirit within me. Oh God, fill me with joy now. प्रभु मुझ में अभी गिरा हुआ आत्मा या फिर निराशपन है, दुखमय जीवन है, अभी आप मुझे आनंद से भर दो। Help me to live a life of victory now. मुझे विजयता का जीवन को जीने के लिए मदद कर। Lord, I want you to fill my heart with gladness. प्रभु मैं अपने हृदय को हर्ष से भरना चाहता हूँ। He expected God to give him joy in his heart उसने आशा रखा कि प्रभु ताकि उनके हृदय में आनंद को दे सके, because he believed in forgiveness. कि उसने क्षमा के ऊपर विश्वास किया। And he said, Lord, hide thy face from my sin. Don't see my sin because I'm ashamed of my sin. अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले पिता, I don't want to remember my sin anymore. Hide from it, O मैं Lord. मेरे पाप को अभी याद नहीं कर सकता, मुझसे आप मुंह फेर ले। Lord, blot out all my iniquities. मेरे सारे अपराधों को मिटा दे, Please, God, कृपया करके पिता forgive me. मुझे आप क्षमा कर। Lord, hide. Don't look at it, O God. उसमें आप मत देखो पिता, छिप Oh जाइए God, blot it out of my book. Blot it out, O God. और सब कुछ हटा दे पिता परमेश्वर। And then he prays this great prayer. और वो ऐसा दुआ करता है, The utmost desire. जो सबसे उत्तम इच्छा, The utmost desire. जो अंतिम इच्छा है। This is a prayer that you and I should pray before we come to church. कलीसिया में आने से पहले हमें ऐसा प्रार्थना करना This है, is a prayer that you should pray before you go to work. और काम में जाने से पहले आपको प्रार्थना करना है। ऐसा This is a prayer you need to pray before you go to school. स्कूल में जाने से पहले आपको ऐसा प्रार्थना करना है, This is a prayer you need to pray before you go to bed. और बिस्तर में जाने से पहले आपको ऐसा प्रार्थना करना है। This is a prayer you need to pray before you start your day. आपके दिन की शुरुआत करने से पहले आपको प्रार्थना करना है। ऐसा What a prayer is this? इतना कैसा प्रार्थना है? Create in me आप मुझ पे बनाइए a clean heart. शुद्ध मन। What? What kind of heart? किस प्रकार का हृदय? What to create? क्या उत्पन्न करना है? Well, he's saying, create in me a clean heart. Oh मेरे God. अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर पिता। He's not saying, give me a new heart. Oh ये God. नहीं कह रहा कि मुझे नया हृदय को दे, That's the job of God to give a new heart. और प्रभु का काम है नया हृदय को देना। David's desire is, Lord, create a new heart. इसका मतलब वो उत्पन्न बनाने के लिए कहता है। You know what create means? जानते हैं बनाना मतलब क्या To है? be created, you should be lifeless. या फिर बनाने का यानी कि आपको जीवन से बाहर हो To जाएंगे। be created, you should be powerless. इसका मतलब आप बिना शक्ति के हैं। To be created, you should be nothing. बनने के लिए इसका मतलब कुछ नहीं है। God created everything from nothing. प्रभु ने सब कुछ बनाया है। So if you want God to create in you, अगर आप चाहेंगे कि प्रभु आप में कुछ बनाए, you should become
totally humble. इसका मतलब आपको पूरे तरीके से नम्र होना है। You should be totally opinionless. आपको जो है आप शक्ति से परे बाहर हो जाने हैं In front of God, you should become totally defenseless. और प्रभु के समूह आपको बिना सुरक्षित के रहना है। No excuses. कोई भी बहाना ही नहीं। No blaming. आप मुझे मेरे तो दोष न Not लगाएं। trying to show you are better than somebody. मत दिखा कि आप मुझसे भी बेहतर हैं। Do you want a heart or you want God to create a new heart? क्या आप जानते हैं कि आपको ऐसा हृदय या फिर आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में हृदय को तैयार God, I करे? want to take this out. I want you to create a new heart. प्रभु मैं चाहूंगी इसको आप हटा दें और मेरे जीवन में नई हृदय को बनाइए। Create it, oh God. Use your hand. अपने हाथों का आप इस्तेमाल कर पिता। God created a new heart. Use your word. मुझ में नई हृदय को उत्पन्न कर। My heart is deceitful and desperately wicked. मेरा हृदय पूरे दुष्ट से भरा हुआ है। Now, God, create a new heart. अबे मुझ में नई हृदय को उत्पन्न कर। The Bible says in the beginning, God created. लिखा कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। God created when there was nothing. जब कुछ नहीं था परमेश्वर ने सृष्टि किया। You have to become nothing in order for God to create a new heart in you. आपको जो है पूरा खाली हो जाना ताकि परमेश्वर आपको बना सके। As long as you become proud, जब तक आप घमंडी बने रहेंगे, as long as you will be defenseful, defending yourself, जब तक आप खुद को ही रक्षा करते as रहेंगे, long as you give excuses and explanation, जब तक आप खुद को बहाना देते रहेंगे, as long as you think that you are somebody and you are something and you are the right one and everybody is wrong, जब तक आपको लगने लगे आप सही है, आपको भी गलत नहीं हो सकता। God cannot create a new heart. तो प्रभु हमारे हृदय में नए मन को उत्पन्न We नहीं are कर not पाएंगे। asking God for a heart. यहाँ पर हम प्रभु को हृदय के लिए नहीं मांग रहे। We are not asking God for a repaired heart. अभी यहाँ पर उसको रिपेयर वाला हृदय नहीं मांग रहे। David is saying, "Oh God, I want you to create a new heart." लेकिन प्रभु कहता है कि दाऊद कहता है कि मुझ पर शुद्ध All over again. बार से All over again. फिर से A heart like a child. और ऐसा हृदय जो बच्चे का हो, Totally depending on you. जो आपके ऊपर भरोसा करे। A heart like a child that wants to totally lean on you. जैसा हृदय कि आपके ऊपर वो हमेशा भरोसा में रहे। Lord, I don't need a heart. मुझे हृदय की जरूरत नहीं, I need you to create a new heart in me. लेकिन आप मुझ पे नई हृदय को उत्पन्न कर। Create in me आप मुझ पर उत्पन्न कर a clean heart, oh, एक शुद्ध मन को and renew a right spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। Renew आप उसको नया बनाइए। a right spirit. सही आत्मा को। What is the right spirit? सही आत्मा यानी कि क्या है? Good attitude, यानी कि अच्छा चरित्र, godly character. ईश्वरीय चरित्र। Don't make me stingy. और मुझे ऐसा देने में ना मजबूर Don't करें, make me proud. मुझे घमंडी ना बनाएं, Don't make me arrogant. मुझे एरोगेंट ना बनाएं Help me to have a right spirit, और मुझे मदद कर ताकि मुझे सही आत्मा an मिले, excellent spirit, एक उत्तम आत्मा मिले, that I may be friendly ताकि मैं दोस्ती में बने रहूं with God's people, परमेश्वर के लोगों के that साथ, I may be godly ताकि मैं ईश्वरीय बनूं in my attitude, मेरे चरित्र में, that my relationship with God, मेरा जो रिश्ता परमेश्वर my के साथ है, relationship with my church, मेरा जो रिश्ता कलीसिया के साथ my है, relationship with my preacher, मेरा जो रिश्ता प्रचारक my के साथ है, relationship with my मेरा जो spouse, रिश्ता पति पत्नी के साथ है, my relationship with my family मेरा जो रिश्ता परिवार के साथ है, will be with an excellent spirit. ताकि वो पूरे उत्तम आत्मा के साथ होने सके। Can we honestly pray such a prayer? क्या हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं वाकई में? Is there a possibility of such a prayer? क्या ऐसा मुमकिन है जो कर सके? Or do we say, I don't need it. या फिर हम कहें मुझे कोई जरूरत My heart is okay. नहीं, मेरा हृदय सही है, My spirit is okay. मेरा आत्मा सही है। And we will always live a defeated life. और हमेशा हम अविजय जीवन को जिएंगे। But if we would pray like David, अगर हम दाऊद जैसा दुआ करेंगे, which I believe you will, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर से करेंगे ऐसा, because I know you love God. क्योंकि मुझे मालूम है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, And I believe that you need help और today. मुझे मालूम है कि आपको आज प्रभु की जरूरत है। I know I need help today. मुझे मालूम कि मुझे जरूरत है आज, And I need to pray to God. और मुझे आज प्रभु से प्रार्थना करना है। Lord, not a heart, प्रभु हृदय नहीं, but create in me. लेकिन मुझ पे उत्पन्न कर। Lord, create. I'm nobody. मैं कोई भी नहीं पिता, I'm nothing. मैं कुछ भी नहीं, Create, oh God. मुझ पर उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर oh God. हे परमेश्वर, And renew a right spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। A right spirit. सही आत्मा
When we pray such a prayer, जब हम इस प्रकार से दुआ करेंगे, you know what is that clean heart is? जानते शुद्ध आत्मा क्या है? A clean heart is a new heart that God gives. शुद्ध आत्मा न कि वो नया आत्मा जो प्रभु Before देता है। I finish, समाप्त करने से पहले I want you to turn to one verse and then we close. एक वचन में चाहूँ कि आप खोलें इस समय उसका समाप्त करेंगे। Ezekiel 36. इज़ेकियल 36 में हम देखेंगे। Ezekiel 36, इज़ेकियल 36 verse number 26. वचन 26 में हम देखेंगे। And God answers our prayer और प्रभु हमारी दुआओं को जवाब देता है and God gives that to us. और प्रभु वो हमें दे देता है। In 26, वचन 26 में a new heart एक नया, also will I give you, मैं तुमको नया मन दूंगा and a new spirit will I put within you. और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। Because you know why? Because our heart is a stony heart, क्योंकि हमारा हृदय पत्थर वाला हृदय है, adamant, जो arrogant, prideful. जो घमंडी अहंकार, Those are stony heart. वो पत्थर वाला हृदय है। God will give you a clean heart, लेकिन प्रभु आपको शुद्ध मन को देगा a heart of flesh. और ऐसा शरीर का हृदय A को। new heart also will I give you, मैं तुम्हें नया मन को दूंगा, and a new spirit will I put within you. तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न I करूंगा। will take away the stony heart out of your flesh, तुम्हारे देह में से जो पत्थर का हृदय निकाल कर मैं and I will give you a heart of flesh. और तुमको मांस का हृदय दूंगा। Hallelujah. हालेलूया। We are not going to waste any time today. यहाँ पर हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, We're going to pray. हम प्रार्थना करेंगे। We're going to spend some time in prayer. प्रार्थना में हम समय को बिताएंगे। Maybe समय God has reminded you of your confession. शायद आपके पश्चाताप को लेकर प्रभु ने इस समय याद आपको दिलाया Maybe है। God reminded you certain things that you are holding in your heart. कुछ चीजों को जो आप अपने हृदय में अभी धरे रखा है, प्रभु ने आपको याद दिलाया And है। today we need to just come to the altar of God and lay ourselves to God and say, Lord, create in me a clean heart, oh God. और प्रभु की वेदी में आकर हमें कहना है, प्रभु मुझ पे नई आत्मा को उत्पन्न Lord, I कर need renew a right spirit within me. और मुझ पे नई आत्मा को तैयार कर। Lord, I'm here because I need help. मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे मदद की जरूरत है I'm पिता। not coming for my friend. मेरे दोस्तों के लिए मैं नहीं आता हूँ I'm यहाँ not पर, coming for my neighbor. मेरे आसपास के लोगों के लिए नहीं आता I यहाँ am the पर, one who needs help today. लेकिन मैं वही हूँ जो मुझे मदद की जरूरत है। My heart needs to be fleshly hearted. मेरा हृदय आज मांस वाला हृदय होना चाहिए। Lord, I don't want any heart, but create a new heart in me. मुझे कोई हृदय की जरूरत नहीं, लेकिन मुझ पर नई आत्मा को उत्पन्न कर। Help me, Lord. Don't block this way. Please come in and come up. Don't block it. You might hinder somebody from आप coming. रास्ता ना रोके, आप किसी को शायद रोक सकते हैं आने से। Lord, I need your help today. मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है I पिता। need healing today. मुझे आज चंगाई की जरूरत है, I want you to create a new heart in me. ताकि मुझ पे आप नई आत्मा को उत्पन्न कर And पिता। renew a right spirit within me, oh God. आत्मा को नए सिरे से बनाइए I पिता। want to have an excellent spirit. मुझे उत्तम आत्मा की I जरूरत है want to पिता। worship with joy. मैं पूरे आनंद के साथ की I आराधना want करना to चाहता हूँ। love my family with मैं joy. मेरे परिवार को आनंद के साथ प्यार I करना want to चाहूँगा। love my church with joy. मैं कलीसिया को आनंद के साथ प्यार करना I चाहूँगा। want to have an excellent spirit. मुझे oh God. उत्तम आत्मा की जरूरत है पिता। I don't want to be proud. मैं घमंडी नहीं बनना I don't चाहूँगा। want to be lazy. मैं आलसी नहीं बनना I चाहूँगा। don't want to be arrogant towards others. मैं अहंकारी नहीं बनना चाहूँगा बाकी को। Lord, I need a new, renewed spirit within me, oh आप God. मेरे आत्मा को नए सिरे से बनाइए Lord, a पिता। new heart you promised to give. जो आपने नई हृदय को देने के लिए We वादा just किया। read in your word, oh अभी God. हमने वचन में पढ़ा है पिता। You said you're going to give a new heart. आपने कहा कि नए मन को आप देंगे And you will put a new spirit, oh God. और नई आत्मा को आप हमें देंगे। And then you said you'll take away the stony और heart. आपने कहा पत्थर वाले हृदय को हटा Oh देंगे God, create in me a clean heart और today. मुझ पर शुद्ध आत्मा को आप तैयार And करें renew a right spirit within me. और मेरे आत्मा को आप नए सिरे से बनाइए। Lord, I surrender myself मैं to you. अपने आप को इस समय समर्पित करता You हूँ। pray to God this moment. आप इस समय प्रार्थना करें प्रभु And से, surrender yourself. अपने आप को समर्पित करें, Acknowledge your sin. अपने पाप को जाने, Plead for God's mercy. प्रभु की दया के लिए अनुरोध करें Worship और God. प्रभु की आराधना करें, Surrender yourself. अपने आप को समर्पित करें। And then when we do that, और जब हम ऐसा करेंगे you believe in the
forgiveness. आप उस क्षमा में विश्वास You करें। get out from this place by faith, आप विश्वास से इस जगह से निकल सकते हैं, believing that God has forgiven you, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने क्षमा किया, that He has given you a new और heart आप जो परमेश्वर आपको नया हृदय को दिया and a है new spirit. और नई आत्मा को। This moment, ये समय में you did not come for your neighbor, आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं आए you हैं, didn't come for your friend आपके दोस्तों के लिए नहीं आए or for हैं, your family member. आपके परिवार के लोगों के लिए You नहीं, came because of you. आप खुद के लिए आए हैं। आप I came because of me. मैं मेरे लिए आया हूँ, I need help. मुझे मदद की जरूरत है, You need help. आपको मदद की जरूरत है, We all need help for ourselves. हमें खुद के लिए सबको मदद की जरूरत है, May God have mercy upon you and me. ताकि परमेश्वर हम पर दया करे। And may we pray right now. अभी आप प्रार्थना करें साहब, May we do business with God right ताकि आप now. प्रभु के साथ समय कार्य को करें। Father God, we thank you that we can come and receive forgiveness. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर आकर आपकी क्षमा को हमने ग्रहण किया, And we thank you, God, that we can believe in your forgiveness. और हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके इस क्षमा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। You're a good, good God. आप भला परमेश्वर हैं। Thank you for your love, आपके प्यार के लिए your धन्यवाद, mercy, आपके दया के लिए, and your grace, O Lord. आपके अनुग्रह के लिए पिता। Thank you for forgiving us. हमें क्षमा देने के लिए धन्यवाद, Thank you for washing us. हमें शुद्ध कर धोने के लिए Thank you for धन्यवाद, making us clean, O God. हमें आप साफ किया, धन्यवाद पिता। You're a wonderful God. आप अद्भुत परमेश्वर हैं। We love you too, God. हम भी आपसे प्यार करते हैं पिता, We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। Bless these dear people. ये प्रिय लोगों को आशीष कर, And bless them with every blessings from heaven above. स्वर्ग के से और सारे आशीषों को उन लोगों को आप बरसाइए पिता। Help all of us to live life that pleases you. ऐसा जीवन को जीने के लिए मदद कर जो आपको प्रसन्न कर सके, May Christ be glorified. ताकि यीशु को महिमा मिले। In Jesus' sweet name we यीशु pray. मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। And all God's people said, Amen and amen.